Good Good morning. morning. Good Good morning. morning. Morning, ma'am. Good Very good morning. morning. Good Good morning. Good Good morning, morning. Dipti Very Varma. good morning. Very good morning, Good everyone. morning, ma'am. So, today also I'm told to finish the session 5 minutes before time. So there are always something, but then we have to end by 7:05. That we have to remember. And let's see what's in store for us. I've just been told that aaj jaldi khatam karna hai. So I'm sure there's some happiness somewhere, celebration of sorts. So yeah. So today's chapter is Money Magnet. Dhan ka chumbak is what it's called in the Hindi book. And how to become a money magnet, that it starts raining money on us and we are able to have that financial freedom, financial stability and financial independence. और ये बहुत जरूरी वाली चीज होती है because of course we know money is not everything but money is a lot. Definitely it can get us a lot of happiness. Not everything, but yes, to a large extent. So it's very important for everyone to have abundance of money. और वैसे भी I think ये इतनी खुशी वाली चीज होती है कि अगर किसी को भी unexpected money कहीं से मिलता है, so there's always that kind of a charm and pleasure on our face, like in our heart. So because no matter how much money we have, if we unexpectedly receive some money from somewhere, it always gives us a great divine happiness, जो अंदर से निकलती है दिल से. So having that kind of being a magnet to the money is so crucial. And it is said that there is enough money floating around in the world. बस हमको मैग्नेट बनना होता है और मैग्नेट बनने के जो रूल है, जो गेम प्लान है या रोड मैप है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे फ्रॉम टुडेज चैप्टर. इट इज सो मच टू डू विद स्पेंडिंग मनी. एक लार्ज हार्ट से पैसे स्पेंड करना और खुल के देना, पैसे ब्लेस करके, पैसे को भी ब्लेस करके, एंड टू द पर्सन वी आर गिविंग इट टू ऑल्सो. ब्लेस दैट पर्सन एंड ब्लेस द मनी. और खूब जॉय के साथ, जितने जॉय के साथ हम पैसा रिसीव करते हैं उतने ही खुशियों के साथ पैसा जब निकलता है. ठीक है. सो दैट मीन्स दैट यू हैव ट्रूली बिकम अ मैग्नेट टू मनी. एंड बहुत जल्दी पैसा हम मैग्नेटाइज करेंगे because money is nothing but a means to an end, isn't it? It's not an end, it's a means to an end. अगर आपको अपना, if you want to buy a house, घर खरीदना है बहुत बड़ा सा, so money is a means to an end. उस पैसे से आप घर खरीदोगे, है ना? Similarly, if you want to buy a nice luxury car or 2 more cars maybe, so money will be the means to an end. It is not the end. So that is what it is, what we need to understand, that, to be able to become that kind of a money magnet where we are able to enjoy the best of life with whatever material things. You may want to do some CSR activities, some social networking, some social work, some social something, establish an organization, start a new business. किस तरह वो prosperity हमारी जिंदगी में आती जाएगी is something. And like I have been a pretty good example of that, in the sense, how my financial growth is only going up the charts, constantly. There was a time when I used to look at the price tags when I went shopping. I don't need to do that anymore, it just in these 3 years of time. So अगर ऐसी सिचुएशन नहीं आई है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वी आर डिपिंग इन टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ द मनी. ओके, कहीं पे हमको पैसा देना है, वहां पे हमारी फीलिंग फ्रीक्वेंसी लो है, इसलिए हम नहीं दे पा रहे. सो मैं आपको सारे टूल्स बताऊंगी दैट आई हैव आल्सो यूज्ड इन दीज 3 years टू हैव एस्केलेटेड माय फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड great financial growth, I would say. Okay, and of course chapter mein there is a lot that we have to study, and believe me, it is the easiest thing to do. Money magnet बनना. इस image में एक magnet नजर आएगा. Once I'll just scroll it down. इस image में एक magnet नीचे नजर आएगा यहाँ पे. ठीक है. और this is the magnet that you can see, and see how छोटा सा magnet है, which is we, our entity out there. और ऊपर देखो कितना पैसा, मतलब सारा ड्रॉन हो रहा है मैग्नेट की तरफ, एज इफ जो आयरन नेल्स आती है मैग्नेट की तरफ. दिस इज हु वी बिकम. फर्स्टली वी हैव टू बी ओपन एंड रिसेप्टिव टू रिसीविंग द मनी. ब्लॉकेजेस हमारी लाइफ में होते हैं.
और ब्लॉकेजेस हम ही बना के रखते हैं। सो एक तो ब्लॉकेजेस हमको सारे हटाने हैं, और जब हम पैसा दें तो हमको बहुत प्यार से पैसा देना है और बहुत ब्लेस करके, और कोई कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि पैसा बहुत डायनामिक चीज होती है, डायनामिक एनर्जी होती है। डायनामिक का मतलब होता है इट्स ऑलवेज मूविंग, इट्स हाईली मोबाइल। जब तक वो मोबिलिटी में नहीं जाएगी तब तक पैसा आता नहीं है। So that's how it is. So let's read the chapter and I can give you some more extra tips to become a money magnet and the practices that I have done to become a money magnet. हाँ जी, so I think Kalpana ji आप पढ़ रहे हैं आज? हाँ जी. Yeah, Good please, morning, ma'am. everyone. So today's day is 9, the money magnet. It is only with gratitude that life becomes rich, by Dietrich Bonhoeffer. Gratitude is riches and complaint is poverty. It's the golden rule of our whole life, whether it's your health, job, relationship, or money. The more beautiful you can be for the money you have, even if you don't have Grateful. very much. Kalpana ji दोबारा पढ़िए. The more grateful. हाँ जी. The more grateful you can be for the money you have, even if you don't have very much, the more riches you will receive, and the more complaint about money, the poorer you will become. Today's magical practice turn one of the biggest reason people complain about money into an act of gratitude, and so it has doubled the power of change the circumstances of your money. You will be replacing a complaint which makes you poorer with gratitude which magically brings your riches. Most people won't think they complain about money, but if there is a lack of money in their life, they are complaining without realizing it. Complaining becomes through people's thought as well as their words, and most people aren't aware of many thoughts in their head. Any complaining, negative, jealousy, or worried thoughts or words about money are literally creating poverty. And of course, the biggest complaints come when the money has to be paid out. If you don't have enough money, paying your bills can be one of the most difficult things to do. It can seem that there is a greater stream of bills than there is a money to pay them. And if you complain about your bills, then what you are really doing is complaining about money. And complaining keeps you in poverty. If you don't have enough money, एक मिनट कहाँ गया? Screen से पढ़ लो जो मैडम blue में स्क्रीन नहीं highlighted दिखता. है. हाँ, एक मिनट. हाँ. If you don't have money, the last thing you would normally do is feel grateful for your bills. But in fact, that's exactly what you have to do to receive more money in your life. To have a rich life, you must be grateful for everything to do with money. And begrudging your bills is not being grateful. You must do the exact opposite, which is to be grateful for the goods and services you have received from those who build you. It is such a simple thing to do, but it will have a monumental effect on the money in your life, and you will literally become a money magnet. To be grateful for a bill, think about how much you have benefited from the service or goods on the bill. If it's payment for the rent or a mortgage, be grateful that you have home and you are living in it. What if the only way you could live in a home was by saving up all the money and paying cash for it? What if there was no such thing as lending institute or places to rent? Most of us would be living on the streets. So be grateful
to be lending institute or your landlords because they have made it possible for you to live in a home or apartment. If you are paying a bill for gases or electricity, think about the heating and cooling you received, the hot shower and every appliances you are able to use because of the service. If you are paying a phone or internet bill, imagine how difficult your life could be if you had to travel vast distance to talk to each person individually. Think about how many times you have been able to call family and friends, send and receive emails, access information instantly through the internet because of your service provider. All of these remarkable services are at the fingerprints, so be grateful for them and be grateful that the companies trust you by providing their services before you have paid them. Ever since I discovered the phenomenon power of gratitude, I write the magic word, thank you, paid. For every bill, I pay it, and I never miss a single one. At the beginning, when I didn't have the money to pay a bill, I would still use gratitude's magic power and would instead write across the bill, thank you for the money. And then, when I had the money to pay it, I would add, thank you, paid. Today we are going to do the same. Take any current unpaid bill you have and use gratitude's magic power by writing across them, thank you for the money, and feel grateful for having money to pay the bill, whether you have it or not. If you receive and pay most of your bills online, then when you receive an online bill, forward it to yourself as an email or write in the subject line in capital bold letters, thank you for the money. Next, find 10 bills of you have paid in the past, write across the front of each one the magic word, thank you, paid. As you write on each paid bill, feel as grateful as possible can that you had the money to pay the bill. The more gratitude you can harness for the bills you have paid, the more money you will magically magnetize to you. From this day forward, you could make regular practice that whenever you pay a bill, you briefly think about the great service you have received from the bill and write across the face of the bill the magic word thank you paid. And if you don't have the money to pay a bill, use gratitude's magic power and write thank you for the money and feel as if you are saying thank you because you have money to pay the bill. Feeling gratitude of money you have guarantees you will receive more. Gratitude is a magnetic golden thread attached to your money. So when you pay bill out, the money always return to you and sometimes equally, sometimes tenfold, sometimes hundredfold. The abundance you receive back depends not on how much money you give, but on how much gratitude you give. You would have much gratitude when you pay bill for $50 that you receive back hundred of dollars. The magical practice number 9, the money magnet. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing you can. Second, take your current unpaid bills you have, use gratitude's magical power, and write across each one. Thank you for the money. Feel grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not. Third, take 10 bills you have paid in the past, write across the front of each one of them the magic word thank you paid. Feel truly grateful that you have a money to pay the bill. Fourth,
Before you go to sleep, take your magical rock in one hand and say the magic word, thank you for the best thing that happened during the day. Yeah, thank you so much, Kalpana Thank ji. you for आप opportunity. और अपने आप को ना रीड किया, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स आपके मिस हो रहे थे, सो दैट अच्छा, सिग्निफाइज दैट आप अपनी लाइफ में भी कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीजें मिस कर रहे हो, शायद मे बी फाइंड मोर ग्रेटिट्यूड, okay, है okay, ना? okay. But Thank very, you very for well calling. tried, very well challenged. Thank you so much for reading. So this money magnet practice is about spending money. पहले तो हमेशा जब भी पैसे का बात आती है तो शुरू के फर्स्ट पैराग्राफ में यही आता है that you know that कभी भी envious, jealous feelings और पैसे के बारे में worry, पैसे को लेके discussions होना in a negative connotation, पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है, पैसा ये हो रहा है, पैसा वो हो रहा है, एक समझाने का तरीका होता है, और एक पैसे को इशू बना के घर में डिस्कशंस होना या किसी और के साथ डिस्कशंस होना। और सबसे बड़ी चीज है ग्रीड, ग्रीड, फ्री की चीजें लेना, किसी के कॉस्ट पे, इज समथिंग जो बिल्कुल भी मिलियनेयर माइंडसेट नहीं है। जब तक हम मिलियनेयर माइंडसेट अपना नहीं बनाएंगे तब तक हमारे पास पैसा नहीं आएगा, ठीक है? सो बहुत जरूरी है, एंड एज दे से फर्स्टली देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। तो अगर आप सोचो कि किसी से आपको फोकट का पैसा मिल जाए, कोई आपको दे दे, कोई ऐसा कर दे, बिलीव मी देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। अगर वो एनर्जी कहीं से आई है तो जिसने हमको पैसा दिया है उसकी तो बहुत बरकत होगी, डेफिनेटली, ठीक है? लेकिन आपका कहीं ना कहीं से वो पैसा निकल जाएगा। सो कोई भी चीज बिना पैसे के लेते, बिकॉज वो एनर्जी, अगर हमारी एनर्जी बहुत हाई होनी है, अगर हमको मिलियनेयर बनना है या हमारी अगर विशेज एंड ड्रीम्स पूरी होनी है, तो हमको उस चीज के लिए उसके बराबर की एनर्जी देनी होती है, ठीक है? कहीं पे भी आप दे सकते हो। आपको याद है ना, शुरू शुरू में जब हमने सेशन शुरू किए थे तो मैंने कहा था कि रोज जाके किसी को 10 रुपए दो, मतलब इन सेशंस के एवज में, क्योंकि ये आपको मुझसे जो ज्ञान भी मिल रहा है, तो मैंने कहा था कि फॉर दिस यू नीड टू पे 5 रुपीज और 10 रुपीज टू समवन, गो गिव इट जस्ट लाइक दैट टू अ रिक्शा वाला। आप किसी को चाय पिला दो, गार्ड को, आप किसी छोटे बच्चे को एक बनाना खरीद के दे दो। बट मैंने कहा था ना, इन मतलब मेरे सेशंस के नाम पे आप ये करना जाके, that because I have gained something in my life, so this is the reason I'm giving something to someone out there. Why? Because I knew कि आपकी जिंदगी तब तक नहीं बदलेगी जब तक आप इसके एवज में कहीं पे कुछ एनर्जी स्टेक पे नहीं रखते हो या कुछ देते नहीं हो। Remember ना, for 2 years I made everyone do that. So now it is firstly ये greed का factor. So just being a little more practical other than what we have studied here, how my money has escalated is greed angle हटाना पड़ेगा, ठीक है? किसी भी चीज का कि वो फ्री में मिल जाए। हाँ, आपको मिलेंगे डिस्काउंट्स बहुत ज्यादा, बट सिर्फ डिस्काउंट का वेट करना इज नॉट अ मिलियनर माइंडसेट। पैसे खर्च करना, आप थोड़ी थोड़ी चीज आप उस तरह, मतलब जैसे अगर आपका, सो व्हाट आई हैव डन टू इंक्रीज, व्हाई मनी हैज इंक्रीज सो मच, कि मैं लिटरली मैंने छोड़ दिया है अब प्राइस टैग को देखना, अगर मुझे कोई पसंद आता है तो, डेलिबरेटली। और ये मैं 1 साल से कर रही हूँ, ठीक है? तो 1 साल पहले मुझे प्राइस टैग देखने की जरूरत पड़ती थी। आई वुड सी दैट इफ दिस कोट इज फॉर 8,999, तो मैं उस कोट को पैसे के साथ कंपेयर करती थी कि इतने वर्थ का है कि नहीं है। फिर मुझे लगा कि एनर्जी का कोई वर्थ होता है, मतलब ये तो मेरा पैसा है। अगर मैं 8,999 का कोट खरीदती हूँ और मैंने वो ज़ारा के काउंटर पे पैसे दिए हैं, वो मेरा पैसा है, वो उनको ब्लेस करके जिसको भी मैंने दिया है ज़ारा स्टोर को, वो वापस मेरे पास आ जाएगा। और जब वो वापस आता है तो मिनिमम 3 टाइम्स, ये हमारे वेदांत में लिखा हुआ है, वो मिनिमम 3 टाइम्स बढ़ के हमारे पास वापस आएगा। बट विथ वॉट एनर्जी एम आई गिविंग दैट मनी? Am I really so happy to give that? Wow, I have that kind of a money that मैं 9,000 रुपए का कोट इतने आराम से खरीद लेती हूँ, और मैं उस पैसे को खूब ब्लेस करूँ कि जिसके पास भी जाए, जिसके भी पर्स में, जिसके वॉलेट में, जिसके बैंक अकाउंट में, उनको बहुत प्रोस्पेरिटी दे। और जिस पर्सन के हाथ में मैंने दिया है, जो मेरी बिलिंग कर रहा है, उसका तो बस, मतलब उसको कभी पैसे के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा।
इतना ब्लेस करके जब पैसा देते हैं, अकॉर्डिंग टू वेदांत वो मिनिमम 3 बार मल्टीप्लाई होके हमारी जिंदगी में आता है, बट हिचकिचाहट देने में होती है। अगर आप लोग कभी भी मेरे साथ ट्रैवल करते हो तो हमेशा नोटिस करना, अगर 670 का बिल आता है तो आई गिव 700 रुपीज। अगर 1020 का बिल आता है तो आई गिव 1100 रुपीज, लाइक दैट। कभी 17 का आया है तो मैं 2000 रुपए देती हूँ। सो दिस हैज टू बिकम अ वे ऑफ लाइफ, और उसको बहुत सारा ब्लेस करके बार्गेन करना रिक्शे वालों से, और इवन फ्रूट सेलर्स एंड ऑल। इमेजिन वो जो फ्रूट सेलर्स हैं या जो सब्जियां देते हैं, ठीक है, वो कितना एक्स्ट्रा रख रहे हैं, 10 रुपए, है ना, क्योंकि उनके लिए 10 रुपए के बहुत मायने। इट इज नॉट इजी टू सिट इन दिस टेम्परेचर, समटाइम्स इज सोरिंग एट 40 डिग्रीज 45 डिग्रीज हियर इन दिल्ली सिंस आई लिव हियर। कभी कभी बहुत बारिश होती है, इतना कि हम घर से बाहर नहीं निकल पाते, पानी जम जाता है, वो सब्जी वाले फिर भी सड़क पे बैठे हुए होते हैं, ठीक है। कब तो वो कितना ज्यादा कमा लेंगे। इफ यू गॉन टू टेक अ कॉलीफ्लावर, वो बोल रहे हैं 60 रुपीज केजी है, आपको लग रहा है कि नहीं बाकी सब तो 40 दे रहे हैं, आप 60 क्यों दे रहे हो? अरे आप दो यार उसको 20 रुपीज एक्स्ट्रा, और इतना ब्लेस करके दो कि वो 20 रुपए 20,000 बन के आपके पास विद इन अ मंथ वापस आ जाएंगे। सो ये माइंडसेट होना बहुत जरूरी है, एंड दिस इज हाउ आई हैव ग्रोन। सो जब ये पैसा बहुत सबसे डियर चीज होती है इंसान की, पैसा और अपनी लाइफ, है ना। सो जब पैसा आप दिल खोल के निकालोगे तो आप देखना वो कैसे वापस आता है। सो ये बहुत जरूरी होता है, और जो जो लोग भी ऐसा करते हैं उन लोगों ने उसका रिजल्ट देख लिया, एंड वन ऑफ देम इज मी। आई हैव सीन, यू विल नॉट बिलीव दैट, लाइक मिरेकल की तरह काम करती है ये वाली चीज। जब क्वांटम लेवल पे हम गेम खेलते हैं ना, जिंदगी इज अ गेम, राइट, ये हमने पावर बुक में पढ़ा था, लाइफ इज अ प्ले, प्लेड एंड प्लेड वेल एंड विन इट। सो इस गेम का, ये जो मनी वाला जो गेम है ना, ये लिटरली एक गेम होता है। यू प्ले दैट गेम ऑफ गिविंग समवन, वो मतलब 50 रुपए में भी हम बार्गेन कराते रहते हैं, बेचारा रिक्शे वाला ड्रैग करके हमको लेके जा रहे थे, मैनुअल मैन पुलिंग रिक्शा, एंड ही इज टेकिंग अ बॉडी वेट टू प्लेस ए टू प्लेस बी, और उसमें भी हम उसको बोल रहे हैं कि नहीं भैया 50 रुपए नहीं लगते, 40 रुपीज ले लो। नहीं, अगर वो 50 है ना, प्लीज उसको 60 दो, फिर देखना कि कितनी जल्दी वो एनर्जी आपके पास घूम के वापस आती है। सो डोंट होल्ड ऑन टू मनी। कहते हैं ना, लक्ष्मी जी चंचल होती हैं, मनी इज डायनामिक, इट लव्स मूवमेंट। इसीलिए जब हमने वो बुक पढ़ी थी, पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, तो उसमें एफर्मेशन क्या था? मनी इज ऑलवेज सर्कुलेटिंग इन माई लाइफ एंड आई ऑलवेज हैव अ डिवाइन सरप्लस। Why that word circulation was there? Circulation का मतलब जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है और वापस आ रहा है, सर्कल, सर्कुलेटिंग इज सर्कल। सो ये सर्कल होता है, वो जाएगा फिर वापस आएगा, फिर वो जाएगा फिर वापस आएगा, इसी तरीके से। अगर हम खर्च नहीं करेंगे या फिर छोटी छोटी चीजों के लिए बार्गेन करेंगे और पूरे टाइम प्राइस टैग्स ही देखते रहेंगे, हम सबको पता है, अगर आप H&M में घुसे हो, सपोज टू पिक अप समथिंग, वी नो अप्रोक्सीमेटली उसकी क्या कॉस्ट है, ये भी हमको मालूम है कि हमारे पास बैंक बैलेंस कितना है, एंड कैन वी अफोर्ड टू बाय अ टी शर्ट और अ ड्रेस जो H&M में रखी हुई है क्योंकि आपको बहुत अच्छी लगी है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप जाते ही क्यों वहां पे, है ना। कितनी हो जाएगी? 3000 4000, H&M तो इकोनॉमी ब्रांड होता है, तो कितना हो जाएगा? 4000। ऐसे में जिस चीज पे आपकी नजरें गई है और हाथ पड़ा है, अगर आपको चाहिए, आप अंदर गए हो इंटेंशन के साथ, पिक इट अप, ठीक है। इफ यू रियली वांट सम नाइस नाइकी शूज, वो ऑन एन एवरेज 15 to 20,000 के होंगे, ठीक है, गो एंड बाय इट। आप जाओ, अगर नहीं जाना है, नहीं लेना है तो मत घुसो उसमें, तो बट उस एनर्जी के साथ वापस मत आओ, बिकॉज थॉट्स बिकम थिंग्स, ओके, एंड थॉट्स आर वेरी वेरी पावरफुल, दे पेनिट्रेट द एनर्जी ऑफ द क्वांटम फील्ड इन योर बॉडी एंड ऑल अराउंड यू। अगर आपने एक चीज के लिए कहा सॉरी आई कैन नॉट अफोर्ड इट, नाउ यू हैव मोर, ओके, नाउ देयर विल बी मल्टीपल थिंग्स, और आपका पैसा कम होता जाएगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड इट। सो ये मुझे बहुत स्ट्रांगली इसलिए लगा था बिकॉज कल परसों, आई थिंक पिछले 4-5 दिन की बात है, somebody had written, मुझे याद भी नहीं है, that this is so expensive for something in the group,
You know, this is so expensive. I think it was to do with the book, this book that we are reading, the second book or something. This is so expensive. तो मुझे ये लग रहा था कि मैं फेल हो गई, you know, मुझे यही लग रहा था. मैंने कहा मैं फेल हो गई. मैं 3.5 साल से देयर हैव बीन टाइम्स जब मैं 4 बजे सोती हूँ और मुझे 5 बजे उठना होता है, सिर्फ इसलिए कि आई हैव टू कंडक्ट द स्टडी एट 6 o'clock. You know, and you don't know under what health challenges. The day I was in the hospital last month, you know, I was very, very sick, but this was very clear. This was non-negotiable कि मुझे 6 बजे उठ के स्टडी लेनी है. मेरी बिल्कुल ऐसी हालत नहीं थी उस दिन, ठीक है. और उसके बाद जब मैंने वो पढ़ा that, you know, this is expensive. It was 300 and something rupees. तो मुझे लगा कि I have not been able to change the life so much also. अभी तक तो 3,000 आपको ऐसे ही दान कर देने चाहिए थी, और 300 रुपए अगर महंगे लग रहे हैं, whosoever, I don't know who it was, you need to step up your practices. आप या तो कंसिस्टेंट नहीं हो, या आप अभी तक ग्रैटिट्यूड सबकॉन्शियस माइंड में घुसा नहीं है, और अभी भी कंप्लेन करने की अगर आदत है या कुछ, तो विथ ऑल कंपैशन एंड माय लव फॉर यू, you need to step up the practices and make gratitude a priority in life. Okay, if 300 rupees cannot be expensive. मतलब चलते फिरते इतने खर्च अभी तक, अगर इतने सालों से, आई डोंट नो कि कितने महीने हो गए, कितने साल किसी को, बट मनी सबसे इजी ट्रांसफॉर्मेबल एनर्जी होती है. और अगर 3 साल में इतना भी नहीं हम कर पाए, अगर हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हुई है, देन वी नीड टू स्टेप अप द प्रैक्टिसेस. इसका मतलब है कहीं पे कैजुअल एटीट्यूड है, ठीक है. बिकॉज पैसा सबसे जल्दी, रिलेशनशिप कर्मा थोड़ा शेक करना पड़ता है उसको, मतलब उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन मनी एंड हेल्थ ये बहुत सुपरफिशियल कर्मास होते हैं. मतलब जो भी, इट इज जस्ट कमिंग विद एन एनर्जी एंड विद अ माइंडसेट. You change the mindset and you will start having the money poured into your life in avalanches of abundance. This is what we had learned in avalanches. तो इतना डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने हमको सिखाया. सुपर एक्सेलरेटेड लिविंग में बेंटिनो मैसारो ने इतना बताया. पावर बुक में पूरा मनी का चैप्टर है. इसमें मनी के 3 चैप्टर्स हैं. द मैजिक मनी, मनी मैग्नेट जो आज कर रहे हैं, और उसके बाद आएगा द मैजिक चेक, है ना. तो ये 3 प्रैक्टिसेस कर रहे हैं हम पैसे के इतने टाइम से, और उसके बाद भी अगर हमको 300 रुपए महंगे लग रहे हैं, देन वी नीड टू स्टेप अप द प्रैक्टिस. हमको एक दिन में 5-5 करनी पड़ेंगी, ठीक है. और क्योंकि वो आपकी, अगर कोई भी आप में से पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहा है ना, तो वो मेरा फेलियर है. सीरियसली, अगर मैं आप लोगों को इस लेवल तक भी नहीं लेके आ पाई हूँ कि आपको मतलब बहुत आराम से, अभी तक तो ये सिचुएशन आ जानी चाहिए कि आप 3,000 या 13,000 की भी कोई चीज खरीद रहे हो तो आपको सोचना नहीं पड़ना चाहिए, है ना. सो जो लोग सिंसियरली प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका देखा हमने किस तरह से एस्केलेशन हो रही है पैसे की. बहुत बरकत और बहुत आसान है. सो कमिंग बैक टू आज की प्रैक्टिस, आज हमको जितने भी बिल्स हमने पिछले 10 बिल्स पे किए हैं, उनको हमको ढूंढना है कि कहाँ कहाँ पे किया है, और उसमें खूब सारा ग्रैटिट्यूड भरना है कि वाओ, वी हैव दैट काइंड ऑफ अ मनी, दैट हमने उनकी सर्विसेज, और उन सर्विसेज जो एंजॉय करी है उनके लिए थैंक यू बोलना है ना. जैसे अगर आप अपना एयरटेल का बिल पे कर रहे हो, तो कितना फोन आपने यूज किया पूरे महीने, लोगों से कनेक्ट किया, अपना बिजनेस ग्रो किया फोन की वजह से, आपने अपने लव्ड वन से जो ओवरसीज रहते हैं, यहाँ रहते हैं, उनसे बात की, इंस्टाग्राम यूज किया, बहुत सारा फेसबुक यूज किया है, बहुत ईमेल्स चेक करी है अपने फोन पे, खूब अच्छे अच्छे गूगल यूज किया है फोन पे. तो वो सारी चीजों के लिए बहुत सारा थैंक यू बोलने की जरूरत है. और फिर जो पैसा दिया है उस एयरटेल बिल भरने के लिए, उसके लिए पैसा, वाईफाई के लिए, वाईफाई को जितना एंजॉय किया है, जैसे अभी रोज सुबह जूम सेशन वाईफाई की वजह से करते हैं, या फिर अपना जो भी डेटा होता है उसकी वजह से, तो उसके लिए थैंक यू. जब रेंट पे करना होता है तो इतना सारा लैंडलॉर्ड को थैंक यू करो कि जिनकी वजह से आपके पास इतना लग्जरी वाला, इतनी अच्छी लोकेलिटी में घर बना हुआ है. And enjoy that, you enjoyed that home, you are living in comfort and luxuries. जो लोग होम लोन पे कर रहे हैं, वो उनको बैंक को बहुत सारा थैंक यू कहने की जरूरत है. उस बैंक ने जिसने आप पे ट्रस्ट किया, वो आपको जानते भी नहीं थे, और उन्होंने आपको 2 करोड़ 1 करोड़ रुपए 50 लाख रुपए दे दिए, बिना ट्रस्ट, बिना किसी चीज के, और वो भी एडवांस में. पहले दिए ये 1 करोड़ रुपए आपके, अब आप हमको थोड़ा थोड़ा करके वापस दो जिंदगी भर, 15 साल 20 साल. कितनी बड़ी चीज है. इतना पैसा तो हम अपने लव्ड वंस को भी नहीं दे सकते एकदम से 100% ट्रस्ट बेसिस पे.
but bank has given to us. So socho bank deserves so much gratitude, and that money that we have got deserves a lot of gratitude. So each time we are paying the home loan and the car loan, खूब सारा gratitude, या जो भी लोन आपने लिया है, क्रेडिट कार्ड के बिल्स, क्रेडिट कार्ड देते वक्त मैंने किसी को अच्छी फ्रीक्वेंसी में नहीं देखा है, मतलब किसी को थैंक यू बोलते हुए नहीं देखा है। सबको लगता है क्रेडिट कार्ड बिल सरमाउंट होते जा रहे हैं और ये बहुत सारा पैसा देना पड़ता है और क्रेडिट में पैसा होता है, फिर बाद में बहुत दुख लगता है। तो जब चीज एंजॉय की थी तब क्या है ना, सो जब एंजॉय की थी, जब जेब से पैसा भी नहीं निकला था, बैंक ने दिया। Suppose you wanted something like really nice, you wanted to book your flight tickets because you wanted to go on a vacation, and now you paid, say, whatever, 60,000 rupees from your credit card. But जब वो 60,000 देने की बारी आ रही है, तब दुख लग रहा था, देने की बारी है तो दुख हो रहा है। तो इस फ्रीक्वेंसी के साथ अगर हम पैसा वापस कर रहे हैं तो इसका मतलब है स्पाइरल डाउन, इसीलिए पैसा नहीं आता हमारे पास, ठीक है। So you have to say thank you to the credit card. Suppose it's an ICICI Bank credit card, you have to say a lot of gratitude to that credit card and to that bank. उनको bless करो, उनको prosperity की blessings दो, ठीक है, और उस पैसे के लिए थैंक यू हो जो आप वापस लौटा रहे हो क्रेडिट कार्ड कंपनी को। वो बेचारे तो ऑप्शन देते हैं आपको, दैट ईदर यू कैन पे लम सम और यू कैन पे मिनिमम अमाउंट ड्यू, उसमें भी हमको तकलीफ होती है। तो कहाँ से पैसे के साथ अगर वरी और उस तरह की फ्रीक्वेंसी है तो पैसा नहीं आता है। पैसे की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, हमको वहां तक अपने आप को लेके आना पड़ेगा लगातार, ठीक है। आप एफर्मेशन से, प्रैक्टिसेस से मनी फ्रीक्वेंसी को अच्छी रख के और दिल खोल के खर्च करना सीखें जब हम, तभी पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आता है। दिस आई हैव सीन इन माय टेन्योर ऑफ एवर सिंस आई हैव बीन इनटू द ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस। जब तक खर्च नहीं करोगे दिल खोल के, एंड गिव अ लिटिल एक्स्ट्रा, ओके, गिव अ लिटिल एक्स्ट्रा। कभी कभी वो जब कैब्स के तो डेबिट हो जाते हैं, ऑटो डेबिट हो जाते हैं, विच इज ओके। अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो तो वी गिव टिप्स, राइट, सो यू कैन गिव टिप। अगर सर्विस टैक्स इंक्लूडेड नहीं है तो आप आराम से टिप दो उनको, you can just give it, like give it to the cab people, give it to anybody who's done anything for you, because and bless करके देना है, that bless the money, that thank you that I have the money, thank you money for giving me a freedom to choose। and then जिसको दे रहे हो कि जिसके भी घर में ये पैसा जाएगा उसके वॉलेट, उसके बैंक और उसकी पॉकेट्स में खूब पैसा, सरप्लस पैसा होगा, ठीक है। इस फ्रीक्वेंसी के साथ जब हम पैसे देते हैं तो हमारे पास पैसे आते हैं। So this is the reason today we are picking up the last 10 payments that we may have made. It really doesn't matter that the money could be a very small amount. It could be as little as, like say 10 rupees, 5 rupees. So amount does not matter. Okay? It is the gratitude that you're filling into it matters. So इसलिए ग्रैटिट्यूड में कमी मत रखो। अमाउंट चाहे छोटा आप दे रहे हो, लेकिन आप सपोज आप प्रेस वालों को पैसे दे रहे हो। सो इन इंडिया वी हैव दीज पीपल जो कपड़े प्रेस करके हमारे घर पे डिलीवर करते हैं, और उनका बिल बहुत ज्यादा नहीं होता, कभी कभी 10, 20, 30, 40, 50, बस इतना। लेकिन जब आप उस प्रेस वाले को पैसे दे रहे हो, पहले तो वो हिसाब करने की जरूरत नहीं है। अगर वो 20 रुपए की जगह बोल रही हैं कि 30 रुपीज दे दो, चुपचाप दे दो, ठीक है, पर उनको बोलना कि नहीं हुआ 20 है, मैं आपको एक्स्ट्रा दे रही हूँ 10। उनको ये भी नहीं लगना चाहिए कि मतलब इनसे ऐसे कर लो, लूट लो, ये सब भी नहीं होना चाहिए। सो यू से दैट आपके 20 रुपीज ही होते हैं बिकॉज लास्ट के ये थे, बट आई एम गिविंग यू 30 रुपीज, आप 10 रुपए रख लो, कोई बात नहीं, ठीक है, और पैसे ब्लेस कर दो। और उन्होंने जो कपड़े एफर्ट्स किए हैं आयरन करके, तह लगा के आपके घर में डिलीवर करने के लिए डोर स्टेप पे, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। सो ये लास्ट 10 बिल्स हमको लेके, यू कैन ऑल्सो राइट इट। सो हम बिल्स तो आजकल रखते नहीं है बिकॉज मोस्टली डिजिटल बिल्स आते हैं या फिर जीपे करते हैं। वेजिटेबल एंड फ्रूट सेलर्स से हम लोग जो एग्स एंड चिकन वो देते हैं, ब्रेड, उनके भी बिल्स कई बार होते नहीं है। इंडिया में तो नहीं होते बिकॉज हम स्टोर से नहीं लेते, हमारे वेंडर्स बाहर ही खड़े रहते हैं। सो उनका आप लिख सकते हो। सो व्हाट आई डू इज इन माय ग्रैटिट्यूड, जो वो वाले ये प्रैक्टिस जब हम करते हैं तो आई राइट इट इन माय ग्रैटिट्यूड जर्नल ओनली, जिसमें हम ब्लेसिंग्स लिखते हैं, काउंट माय ब्लेसिंग्स। उसी में ₹20 पेड टू द प्रेस पर्सन, थैंक यू पेड, एंड थैंक यू फॉर द सर्विस ऑल्सो,
तो बी आर ब्लेसिंग द मनी एंड यू आर ब्लेसिंग द पर्सन जिसको आप पैसा दे रहे हो. देन कम टू नंबर 2. सपोज आपने अपने वाईफाई का बिल दिया पर्सन को, सो रुपीज whatever 799 rupees paid to so and so person, थैंक यू पेड, और मन में थैंक यू फॉर दैट वाईफाई सर्विसेज जिसको मैंने बहुत अच्छे से यूज किया, यू नो, टू रन सच ऑफ हाई स्पीड इंटरनेट आई हैव, थैंक यू सो मच. फिर उसके बाद थर्ड पे जाओ, जो भी बिल आपने पे किया, सपोज इलेक्ट्रिसिटी बिल, सो वी जस्ट पेड, सो इफ इट इज लाइक 13,720 rupees, दैट्स हाउ मच माय बिल वाज, 13,720. So 13,720 paid for electricity bill for the month, like last month, for the month of September. Thank you paid, and thank you universe for giving that electricity which is helping me to run the whole household, the electrical appliances, geyser, iron, bulbs, light, tube lights, etc., refrigerator, all arrow system, all of that. Then come to number 4, वो लिख लो. तो ग्रैटिट्यूड जर्नल में ही कर लो, क्योंकि अगर आपके पास बिल है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है. तो ये 10 बिल्स के साथ हमको थैंक यू अटैच करना है आज. और उसके बाद यू नो, अगर कोई ऐसा बिल है आपके पास जो जिसके पैसे नहीं है, सपोज आपको क्रेडिट कार्ड का आपका ड्यू है 80,000 rupees, और आपके पास उस हिसाब से पैसे अभी नहीं है कि आप एकदम से 80 दे दो, है ना, ज्यादा बैंक बैलेंस नहीं है. So you just have to write so and so HDFC credit card, rupees 80,000. Thank you for the money, and feel as if you already have the money. मतलब ये fake it till you make it करना पड़ेगा. So thank you for the money लिखना है उस पे. क्रेडिट कार्ड बिल HDFC rupees 80,000, उसके नीचे thank you for the money, और फिर थैंक करो यूनिवर्स को as if आपके पास ऑलरेडी पैसा है. सो ये भी है आज की प्रैक्टिस. लेकिन 10 पेड बिल्स काउंटेबल है, लाइक उनमें नंबर दिया हुआ है, दे नंबर 10 लेने हमको, लास्ट 10 पेमेंट्स, कुड भी पूरे महीने की, कुड भी पिछले महीने की और इस महीने की, जैसे भी आपको लेना है, ठीक है. बट यू कैन, अगर आप गूगल पे या पेटीएम यूज करते हो, देन यू कैन गो टू द लास्ट 10 ट्रांजैक्शंस जहां जहां आपने पैसे दिए हैं, तो उससे पता लग जाएगा. एंड दे हैव टू बी जेन्युइन एंड प्रिसाइज, दे डोंट हैव टू बी अंदाज से. I mean, you cannot write electricity bill 14,000 just because अगर मैंने electricity bill 13,890 दिया है तो वो 13,890 ही लिखना है, 14,000 नहीं लिखना है. आपने नहीं दिए 14,000, ठीक है, तो ये झूठा नहीं लिखना है, वो एग्जैक्ट होना चाहिए. अगर आपका क्रेडिट कार्ड बिल है 80,172, तो देन इट हैज टू बी 80,172 ओनली आपको लिखना है, एंड थैंक यू फॉर द मनी, इस तरह से. सो जो पेड बिल्स हैं उनके सामने लिखना है थैंक यू पेड. जो अनपेड बिल है, जिसके लिए आपको पैसा क्रिएट करना है, उसके नीचे लिखना है थैंक यू फॉर द मनी, ठीक है. थैंक यू पेड टू द पेड बिल्स, और फील करना है कि उन सर्विसेज को आपने कैसे यूज किया, उनके लिए ग्रेटिट्यूड करना है, और इसमें करना है थैंक यू फॉर द मनी. So this is how we go about it. ठीक है. So आज की प्रैक्टिस में यही है, that first is count my blessings, जो हमने ऑलरेडी लिख लिया है, 10 blessings, reread, and then 3 बार thank you, thank you, thank you. रात को सोने के पहले मैजिक रॉक प्रैक्टिस, उसमें से पूरे दिन का सोचो ये हुआ वाह, वो वाह वाह, और उसमें से बेस्ट चीज निकालो एंड से थैंक यू फॉर इट एंड गो टू स्लीप. और डे में आज की मनी मैग्नेट की ये वाली प्रैक्टिस है जो हमने बताई. और ये आज के बाद से जब भी हम कोई बिल पे करें, अगर हार्ड कॉपी आती है तो उस पे हमको लिखना है थैंक यू पेड, और थैंक यू करना है दैट you know you had the money to enjoy and to you know kind of enjoy the thing or services or goods जो भी आपने उस पैसे से लिए है, और उस पैसे को ब्लेस करके भेजना है अच्छे से. सो इसीलिए पैसे के मामले में जब तक दिल बड़ा नहीं होगा, ठीक है, तब तक मनी मैग्नेट हम नहीं बनेंगे. हाँ, मीन्स टू एन एंड के लिए पैसे मिल जाएंगे, पे चेक टू पे चेक, या पैसे की वेट करनी पड़ेगी कि अब पैसा आएगा तो मैं ये करूंगी, वैसी लाइफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है. यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट. फाइनेंशियल फ्रीडम होनी बहुत जरूरी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी जरूरी है, नहीं तो वो एक कॉज बन जाता है बीमारियों का, और अभी तक बन जानी चाहिए थी. अगर नहीं बनी है इसका मतलब मनी फ्रीक्वेंसी ठीक नहीं है, ठीक है. खुल के लोगों को गिफ्ट्स दो अच्छे से, कोई कंजूसी की बात नहीं है, दिल खोल के जो देना है आपको, जैसे करना है अच्छे से, यू नो लाइक बाय थिंग्स फॉर पीपल, यू कैन take people out for a coffee, treat your friends for a coffee. Well, little things you can start doing that, and you will see that prosperity will chase you, money will chase you.
you will never need to chase money. Okay, this is how it's like. So yeah, this is, then we go to the second book. सो इसमें हम कर रहे हैं अपने ड्रीम्स एंड गोल्स. गोल सेटिंग चैप्टर का नाम है. कल हमने पढ़ा था कि अपने सारे गोल्स को लिख लो और उनको विजुअलाइज करो कि कितना अच्छा लग रहा है उनके गोल कंप्लीशन के बाद. और ये भी लिखा है कि गोल्स लार्जर गोल्स भी हो सकते हैं, लाइक आपने अपने जीडीपी को बहुत बढ़ता हुआ देख रहे हो, आपकी इकोनॉमी, आपकी कंपनी का टर्नओवर, जिसमें आप एम्प्लॉय हो, यू आर वन ऑफ द 5000 एम्प्लॉयज हु आर देयर, बट आपकी प्रेस कंपनी के ग्रोथ एंड सक्सेस के लिए. ऑब्वियसली आपकी तो ग्रोथ एंड सक्सेस होगी, जो मैंने कल बताया था, है ना. 100 किलोमीटर की रेस में 100 किलोमीटर इंक्लूडेड, मतलब हर 1000 किलोमीटर की रेस में 100 किलोमीटर इंक्लूडेड होते हैं. तो अगर जिंदगी में आप अगर 10 किलोमीटर की रेस रन कर रहे हो, मतलब लार्जर गोल है आपका, आप अपनी कंपनी की प्रोस्पेरिटी के लिए प्रे कर रहे हो, उनको ब्लेस कर रहे हो, तो उसमें तो 10 किलोमीटर तो इंक्लूडेड ही होगा ना. तो जो आपके गोल्स हैं वो 1 किलोमीटर ही है. अगर आपको 1 करोड़ रुपए भी चाहिए आज, तो वो आपका 1 किलोमीटर ही है, लेकिन आपका गोल था 10 किलोमीटर रन करने का, तो 1 तो उसमें आ ही जाता है. तो जब हम लार्जर गोल रखते हैं और सेल्फ कंज्यूम्ड नहीं होते अपनी अपनी प्रॉब्लम से, तो अपने आप आपके पास आपके गोल्स बहुत जल्दी रियलाइज होते हैं. सो दिस इज द बेनिफिट हियर. नाउ वी गो टू पॉइंट नंबर 3 की अब क्या करना है. तो कल हमने गोल लिखे, हमने विजुअलाइज किया. अब पॉइंट नंबर 3. यस नीतू, प्लीज स्टार्ट रीडिंग. Thank you. Again, take a fresh sheet of paper based on what seems most meaningful from the ideal scene you have created above. Write a list of the 10 or 12 most important goals for your life as you feel them to be right now. Remember, you can change and revise this list at any time, and you should do so from time to time. Point number 4. Now write down my 5-year goals and list the most important goals you would like to achieve within the next 5 years. Setting goals. It's great to write your goals in the form of affirmations as if they have already been achieved. This helps to achieve a clearer, stronger effect. For example, I now own and live on 20 acres of land in the country with a beautiful house, orchards, a creek, and lots of animals. I now support myself easily and abundantly through leading seminars and giving speeches to enthusiastic and appreciative audiences. In writing your goals, be sure to put down things that are real and meaningful to you, things that you actually want, not what you think you should want. No one else need ever see your goals unless you want him or her to. And this process requires that you be totally honest with yourself. सो इसमें ये एक और 1 सेकेंड नहीं तो सो इसमें एक वो एग्जाम्पल है दैट राइट डाउन पहले तो अपने 10 to 12 गोल्स जो हैं, जो important goals हैं. It could be to buy a house, it could be to achieve a certain kind of amount that you receive every month. It could be to do with, suppose आपको कोई, you want to educate yourself into doing some course, उसके बारे में. Fitness goals आपके हो सकते हैं, body weight goals हो सकते हैं आपके, आपको घर में कोई बहुत बड़ा asset खरीदना है, maybe a diamond ring for yourself. So you can write that. So इस तरह से you can write your 10 or 12 goals. अगर आपको कहीं पे किसी NGO में पैसे देने हैं तो आप वो लिख सकते हो. कितना exactly amount लिखना है, तो जो भी आपके goals हैं, कुछ भी हो सकते हैं. It could be buying a shoe, it could be whatever, like, so वो 10 to 12 goals लिखो. और पहला वो वाला. फिर उसके बाद है 5-year plan लिखना है, और कितने अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ इसमें समझाया है. 5-year plan आपको जैसे स्टोरी के फॉर्म में लिखना है. जैसे इसमें लिखा हुआ है
that I now live in the country with my beautiful farm and I have so many animals and there's a creek, मतलब एक river flow हो रही है, you know, साथ में, और बहुत सारे animals हैं उस पे, मेरे huge acres of land पे, and मैं seminars दे रहा हूँ. तो I'm sure ये शक्ति गवै ने अपने बारे में ही लिखा है, because इनका बहुत अच्छा farmland है LA में, क्योंकि अमेरिकन सिटीजन थी, अभी तो इनकी डेथ हो गई है. सो जब ये 70 इयर्स की थी तो शी पास्ड अवे. एंड वहां पे बहुत अच्छे फार्मलैंड में रहती थी, और इसमें जैसे इन्होंने लिखा है ना, इसीलिए मुझे लग रहा है कि इन्होंने अपने बारे में लिखा है, बिकॉज शी इज मेंशन्ड हियर दैट आई एम गिविंग सेमिनार्स टू एन एक्साइटिंग एंथुजियास्टिक ऑडियंस, यू नो. सो क्योंकि ये सेमिनार्स ऐसे देती थी, मेडिटेशन और ये गोल सेटिंग और ये सब जो इसमें जो हमको इन्होंने पढ़ाया इस किताब में. सो ये इनका था. तो इन्होंने वो 5-year गोल में एक बहुत सुंदर पैराग्राफ लिखा है पूरा, दैट मैं अपनी फैमिली के साथ वहां रहती हूँ, मेरे बहुत सारे अच्छे मीनिंगफुल हैप्पी पॉजिटिव लोग हैं जो मेरी जिंदगी में है, मेरे पास बहुत अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी है, और यू नो हम इतने खुशी से रहते हैं. जो हमारी चीजें, हम वर्ल्ड टूर पे बहुत आराम से यू नो गए, या फिर जो भी करना है, सबके गोल अलग अलग होते हैं. सो जो भी गोल है आपका, सपोज यूर अ डॉक्टर, दैट आपने बहुत हीलिंग्स की हैं और बहुत अच्छा इन द फील्ड ऑफ यू नो लाइक इन द मेडिसिन आपने बहुत नाम कमाया, बहुत सारे पेशेंट्स को हील किया, आपकी 100% सक्सेस रेट रही है. एंड यू नो येट एट द सेम टाइम आपकी लाइफ बहुत, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, वाइल आप बहुत अच्छे डॉक्टर हो बट आप अपनी जिंदगी भी इंजॉय कर रहे हो, यू नो लीजर टाइम आपको बहुत मिलता है, और ब्यूटी अबंडेंस लग्जरीज है आपके अराउंड. आपने एक बहुत गरीब लोगों के लिए एक छोटा सा हॉस्पिटल भी खोला है जहाँ पे यू नो सारी सेवा निशुल्क होती है, आप वहां पे पेशेंट्स आके अपना इलाज करा सकते हैं. तो ये कहानी है आपके अगले 5 साल की. तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं. दैट इज व्हाट इट मेंट. सो नाउ वी गो टू पॉइंट नंबर 5. Point number 5, repeat the process above with your goals for 1 year. Don't make too many. If you have a lot at first, eliminate all but the 5 or 6 most important ones. Check to see that they are in alignment with your 5-year goals. That is, make sure they are moving in the same general direction, so that when you accomplish your 1-year goals, you will be a step closer to your 5-year goals. For example, if one of your 5-year goals is to own your own business, one of your 1-year goals might be to have a certain amount of money saved towards that end, or to have a job in a similar business where you're getting a certain type of experience you will need. Now write out your goals for 6 months from now, 1 month, and 1 week from now. Again, keep it simple and choose the 3 or 4 that are most important to you. Be realistic about how much you can accomplish in the shorter range goals. Again, make sure they are in alignment with your longer range goals. Yeah, it means सबसे पहले 5 years के गोल लिखो, फिर उसको जीरो डाउन करके उसमें से सोचो उन 5 year में से विद इन 1 year आप क्या अचीव करना चाहते हो. जैसे 5 years में अगर आपने लिखा था, जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है दैट यू वांट टू ओन अ ह्यूज एक्सपेंसिव बिजनेस, 5 year गोल है, ठीक है. सो 1 year गोल में क्या होगा कि आपको उससे रिलेटेड कंपनी में पहले काम करना पड़ेगा, ताकि आप थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर पाओ कि कैसे मुझे अपना इतनी बड़ी एम्पायर चलानी है ना. 5 year गोल में तो आपने एम्पायर वाला बिजनेस शुरू कर दिया है. सो बट 1 year गोल में आपको उसमें एक्सपीरियंस चाहिए, तो आपको उसमें यू विल हैव टू डेल्व इनटू दैट बिजनेस एंड वर्क देयर फॉर अ व्हाइल, okay, and see that how things operate in that. So वो आपका 1 year goal है, that to be able to gain experience in dash 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 business, to learn more and learn in depth about how to run a business, ठीक है. उसके बाद जीरो डाउन करो आप 6 months को, अगले 6 महीने के आपके क्या गोल है. उसके बाद 6 month से आप 1 month का करो, अगले 1 हफ्ते में. सपोज आपका लॉन्ग टर्म टारगेट था कि आई हैव टू लूज माई बॉडी वेट बाय सपोज 10 kgs, है ना. 10 kg आपने 1 year का लिखा था.
फिर उसके बाद अब आप 1 मंथ पे आ जाओ। सो 1 मंथ पे अप्रोक्सीमेटली आपको 2 to 3 किलो से ज्यादा लूज नहीं करना चाहिए, ठीक है? उतना ही फैट लॉस उतना ही होता है। अगर उसके अलावा हो रहा है, इसका मतलब है आप अपने मसल्स और वाटर को लूज कर रहे हो और बोन्स को। दैट्स नॉट द आइडिया ऑफ वेट। वेट लॉस नहीं होता, फैट लॉस करना चाहिए, ठीक है? वेट लॉस तो कितना भी, हम 10 किलो भी 1 महीने में कर सकते हैं लोगों का, बट दैट्स मसल लॉस, बोन लॉस। सो अब आपने अपना फैट लॉस गोल डाला है 2 kilos इन दिस मंथ, ठीक है? उसके बाद आप जीरो डाउन करो 1 week गोल, दैट आई एम नॉट ईटिंग शुगर फॉर दिस वीक, ओके? 1 week गोल है आपका। सो इस तरह वो स्टेप्स बनते जाएंगे। तो पहले हमने लार्जर पिक्चर देखी है, फिर उसको हमने थोड़ा टेपर करके, फाइन ट्यून करके 1 year के गोल बताए अपने खुद के लिखे, फिर 1 year से 6 months, 6 months to 1 month, 1 month to this week. So that means we have already started living that goal and we have started taking the first baby step towards achievement of that larger goal जो हमने देखा था, that I'll be the fittest person after 5 years, my weight will be this, very toned body, मेरा cardiorespiratory system बहुत अच्छा होगा because I will be able to run by then, and you know, like whatever it is, and to have whatever kind of. So this is how your goal setting. So हमने larger से शुरू किया था और taper कर करके fine tune करके हम weekly goal पे आ गए थे, उसी से जो related है. Yeah. You may find it difficult to be so specific about events so far in the future, and you may have an uncomfortable feeling about planning ahead. However, just making a plan does not oblige you to follow it. In fact, you are bound to change considerably. This exercise is for the purpose of 1. Getting practice in setting goals. 2. Acknowledging that some of your fantasies can become reality if you wish them to. 3. Getting in touch with some of the important purposes and directions in your life. I suggest that you keep your goals in your notebook. Every now and then, perhaps every few months or so, or whenever it feels like a helpful thing to do, sit down with your notebook and do some of the processes again, revising and reshaping your goals as needed. Be sure to date your paper each time you do this and keep your lists in order in your notebook, as it is very interesting and informative to look back and see how they gradually evolve. Some general rules. 1 second, Neetu. So this is writing goals and sometimes we even forget about it. हमने कहीं पे अपना गोल लिखा and we forget about it, ठीक है? So मैंने 2019 में कुछ गोल्स लिखे थे न्यू ईयर्स पे, बिल्कुल लिटरली इट वाज आई थिंक 31 दिसंबर को लिखे होंगे या मे बी 1 जनवरी को लिखे थे. And you will not believe I had written 10 goals and that time I was not in the magic book journey. और उसमें you will be amazed to see that बीच में मुझे ऐसे हो रहा था, मैं यू नो डीप रेड, मुझे अपनी कार चेंज करनी थी, पुरानी वाली वो 6 साल हो गया था, तो आई थॉट दैट आई वांट टू बाय अनदर कार. और जब मैंने गाड़ी खरीदी तो मैंने उसमें लिखा हुआ था अ ब्लैक कलर्ड लग्जरी कार करके लिखा हुआ था उसमें 2019 के गोल में. बीच में मैं सोच रही थी मैं रेड लूं, ये लूं, फिर मैंने सोचा अच्छा मैं डीप रेड ले लेती हूँ बिकॉज दैट्स ऑल्सो द कलर आई लाइक. यू विल नॉट बिलीव दैट जब मैं फाइनली गाड़ी, मुझे पता नहीं था मैंने 2019 में वो लिखा हुआ है. तो जब मैं कार लेने के लिए गई तो उसमें यही उन्होंने बोला कि आप इस कार की 6 months की वेटिंग पीरियड है, आप टोकन अमाउंट दे दो और फिर 6 महीने में हम कोशिश करेंगे 4 months में आपकी कार आ जाए. और अगर आपको इस कलर में चाहिए, मतलब डीप रेड कलर में लेने गई थी, और तो मैं, वो कहते हैं अभी बस एक ही कार है, वो भी किसी मिनिस्टर के बेटे के लिए, समथिंग लाइक दैट ही सेड कि वो लेके उनके लिए हमने स्पेशली एक रखी हुई थी, तो वो देखते हैं शायद वो वाली गाड़ी नहीं ले रहे, तो अगर आपको चाहिए तो आपके लिए मैं पूछ लेता हूँ हमारी सफदरजंग ब्रांच में. आई हैड गॉन टू नोएडा. उन्होंने कहा सफदरजंग दिल्ली ब्रांच में वो एक गाड़ी खड़ी है, उन्होंने फटाफट फोन करके मुझे ऑर्गेनाइज करवाया और वो सब, एंड दे सेड दैट यू कैन पे अस द टोकन अमाउंट. तो मैंने उनको 10,000 रुपीज थे मेरे पास, तो मैंने उसी दिन उनको दे दिए. Then I saw after 5 months of my purchase of the car that मैंने 2019 की गोल लिस्ट में ये लिखा था ब्लैक, ठीक है? और देखो मेरे पास ब्लैक ही आई.
उसमें मैंने 10 गोल्स लिखे थे. यू विल बी अमेज्ड, क्योंकि जो मेरे अपार्टमेंट में जो बाकी के हमारे फ्रेंड्स हैं, मैं उनको एक दिन अपनी गोल लिस्ट पढ़ के सुना रही थी. और वो all 10 goals have been achieved today. I mean, that day only, which was 5 months after buying the car. That means it was this year, somewhere around middle of this year. तब मैं उनको गोल लिस्ट पढ़ा रही थी. मई जून की बात है, हाँ, इस मई जून की. सो मैं मई में मैं उनको गोल लिस्ट दिखा रही थी. वो कागज लेके गई थी जो मैंने रख दिया था, मतलब लिख के रख दिया था. All those 10 things I have already achieved. I was 2-3 of them were impossible. ठीक है, they were the dreams. They were like जो इसमें लिखा हुआ है ना कि आपकी फैंटेसी थी वो, कि काश ऐसा होता, वो मेरा हो गया. तो उसमें मैंने कुछ कुछ चीजें लिखी थी, because that time I wanted to renovate the house and I wanted like wooden flooring and you know कुछ ये सब भी लिखा था उसी वाली गोल लिस्ट में. और वो देखो सारे all 10 of them have got actualized, जबकि मुझे याद भी नहीं था कि मैंने ऐसा कुछ लिखा था. Yes, this is always there that I wanted that wooden flooring. I want, you know, कुछ चीजें जो मैंने उसमें लिखी थी, and I wanted to change the car. All 10 of them got accomplished in just the span of 3 to 4 years. All 10 dreams. So this is the power of writing the goals. And you know, even when I was not thinking about it, I did not visualize or nothing, but power of writing the goals. So now let's study some general rules. Some general rules. 1. For short range goals, 1 week, 1 month, be fairly simple and realistic. Choose things that you're pretty sure you can accomplish, unless you especially feel like taking on a big challenge, which can be very good sometimes. The more long range your goal, the more expansive and imaginative you can be, so that your horizons are constantly extended. 2, when you find that you have not accomplished some of your goals, which will inevitably happen, do not criticize yourself or assume that you have failed. Simply acknowledge clearly to yourself that you have not accomplished that goal and decide whether or not it is still a goal for you. That is, decide whether you want to set it again for yourself or whether you want to let it go. It is most important that you acknowledge unaccomplished goals in this way. Otherwise, they may accumulate in the back of your mind and you will feel unconsciously that you have failed, which will eventually make you tend to avoid the goal setting process. I think Neetu will be able to read only so much today because Ritu Khanna wants some time for herself. So thank you so much and please read again. And it was a pleasure hearing you, listening to you. Thank you so much. So here ये जनरल रूल्स हैं गोल सेटिंग के. पहला वाला है कि जब आप गोल्स लिखते हो तो you know, like have fun with it. रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, है ना. जब आप लिख रहे हो लॉन्ग टर्म गोल्स और एक्साइटिंग हो जाते हैं सोचने, लेकिन हमको लगता है अरे कल किसने देखा है आज. सो आई एम ऑल्सो दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. आई डोंट टेक टू मच ऑफ pains and thinking about 5 years later, 6 years later, all that. It is like living today and having the best of fun and the best out of whatever we have right now. So that have fun with it. Second वाला ये है that you know, अगर कोई गोल नहीं accomplish हो रहा तो आप लो फ्रीक्वेंसी में मत जाओ आप. और you know, like it's okay sometimes. कई बार होता है that अगर आपका you know, like your so subconscious mind knows that what is the best for you. तो अगर आपका business में आपका growth आगे destined होता है तो subconscious mind आपको job नहीं करने देता. ठीक है, तो आप जॉब अप्लाई कर रहे हो बट नहीं हो रहा, सडनली कोई और पॉपअप करेगा, कोई आपके लाइफ में आ जाएगा और दैट पर्सन विल टेल यू टू स्टार्ट अ बिजनेस, यू नो, एंड यू गेट इनटू दैट एंड स्लोली यू विल सी दैट वो आपका पर्पस ऑफ लाइफ था और उस बिजनेस में आप इतना एक्सेलरेट करोगे बिकॉज job was not for you. So this is the reason sometimes goals don't get accomplished. So don't beat yourself up for anything. Sometimes of course you have to be excited about creating the tomorrow, and creation बहुत जरूरी होता है, which is also the right part of the brain. So we know that brain left or right में होता है. So the right part of the brain is creation, left is the memory and storage.
So use that right side more, think more, visualize more, be happier for your future, be happier for your goal, create that, imagine more, talk about it more, write about it more, listen about it more, go on Instagram and see if you want to buy a house, like some beautiful, Pinterest पे देखो कि कितने सुंदर सुंदर घर है या उनका इंटीरियर्स करना है आपको. So all that we can do, that will stimulate and activate the right side of the brain. और फिर आपके लिए विजुअलाइजेशन और क्रिएशन बहुत इजी प्रोसेस हो जाएगा. शुरू में टाइम लगेगा बिकॉज बार बार आपका पास्ट आपको खींचता है, जो आपका लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन है. पास्ट एक्सपीरियंसेस खींचेंगे जहां पे हमने लैक ऑफ मनी देखा है, तो हमको प्रोस्पेरिटी वाली इमेजिनेशंस नहीं की जाएंगी फॉर अ वाइल. बट धीरे धीरे उसको शार्पन कर करके वो ब्लंट एरिया आपकी लाइफ का शार्प होता जाता है एंड क्रिएशन प्रोसेस बिकम्स वेरी इजी. एंड यूनिवर्स इज ऑलवेज ट्राइंग टू रीअरेंज एंड असेंबल द थिंग्स जो आपकी ग्रोथ और हैप्पीनेस के लिए है आपकी लाइफ में. ठीक है. सो उसको क्या काइनेजेनेसिस बोलते हैं. तो वो सब होता जाएगा हमारे साथ में. सो दैट्स व्हाई कभी कभी ऐसा होता है दैट गोल उस हिसाब से नहीं होता जिस हिसाब से आपने सोचा था होगा, बिकॉज देयर इज समथिंग मच बिगर इन स्टोर फॉर यू and which will get revealed very, very soon. Okay, so that these are also the 2 rules, and then we'll study the 3rd one tomorrow. So yes, over to you, Ritu. Is she even there? Are you there? Yes, ma'am. She is very much there. Acha. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ Good यू. morning, जी. बस मैम मुझे 1 मिनट चाहिए बस. अच्छा. मैम मेरी चलो हम आपको पिन कर देते हैं so that we can kind of गुड मॉर्निंग. Good morning. तो सबको पता है ये मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन वाला वीक चल रहा है. तो दीप्ति मैम ने कल मेरे लिए केक भिजवाया था, तो मैं चाहती थी कि मैं आप सबके साथ केक कट करूं. Is it visible if I? Yeah, it is. The cake is not Yes. visible, but when you raised it, we could see that. Okay, so should I change my space? One moment. Okay. मम्मी लैंडस्केप मोड में रख के देखो. लैंडस्केप मोड में रख लो उसको. हॉरिजॉन्टल रख लो रितु कैमरे को. Okay, now is it visible? Yes, it is visible. कितनी कैंडल लगाए हैं आप? No, अभी तो मैं 10 years की हुई हूँ ना बस. 10 years की हो. ओरिजिनल में कितने साल की हो गई रितु? ओरिजिनल में ही 10 साल की है. अगर ये 10 साल की है तो मैं तो फिर 3 इयर्स की So हूँ. I'm glad Ritu is also wearing the earrings, pearls that I had given to her, and she's also wearing the dress that I had sent to her a month ago for her birthday. वाओ. And she is looking gorgeous. You are looking Yeah. actually gorgeous, Ritu. Like बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो तुम. हाँ बहुत. Really. ये जो शाइनिंग है, ये सारा ग्लोइंग है, ये पार्लर का नहीं है, ये सिर्फ ग्रेटिट्यूड का है. ये Yes. आप लोगों की जो वो है ना टीचिंग्स, और मैं जो लर्न कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ लर्न करने की, ये सब वही ग्लो है आज. मेरे को कई दिनों से इतने हेल्थ चैलेंजेस आ रहे थे, बट तुम्हें देख के मैं तो ठीक सी महसूस कर रही हूँ. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ठीक हो गई हूँ. सच में रितु. Actually, Ritu, to tell you very honestly, मैंने कभी भी किसी को भी right in middle of chemotherapy इस attitude के साथ नहीं देखा है. Believe me. I mean, like Absolutely. अभी तो तुम्हारी कितनी 5 रहती है ना? Yes. है ना?
5 कीमो रहती हैं इन मैडम की, और ये बटरफ्लाई की तरह कभी यहाँ इसकी एनर्जी, इसकी चुस्ती, इसकी स्फूर्ति, इसकी खुशियां, इसका ये दैट बीइंग लाइक अ बबल, I mean, like, it's incredible. Seriously. I mean, you're such an inspiration. और हम सर्दी जुकाम और इन सब चीजों में, इन पचड़ों में पड़े रहते हैं, उसी से हमारी फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है। तुम इतनी मैम सुंदर लग रही हो कि जेन्युइन में यही हुआ है कि मैं बिल्कुल अपने आपको बहुत ज्यादा ब्लेस मानती हूँ। मैं हमेशा से बोलती थी कि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ठीक है पड़ता है, लेकिन अब मेरे साथ भगवान है, मेरी माता रानी मेरे साथ हैं और शिव जी मेरे भाई हैं। एंड लास्ट ईयर जब रक्षाबंधन आया था तो मैंने जो परफॉर्मेंस की थी यूट्यूब पे, उसमें मैंने यही बोला था कि शिव कौन है शिव। तो पहले उनका पूरा इंट्रोडक्शन दिया कि वो शून्य है, सब चीजें हैं, लास्ट में मैंने यही बोला था कि वो मेरे भाई हैं। फिर मैंने डांस परफॉर्म किया था, लास्ट में मैंने बोला कि मैं वो राखी उनके साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ, कि उन्होंने फिर मुझे एक और छोटा भाई दिया, मेरे ठाकुर जी दे दिया, लाइक दैट। उसके बाद से एक सॉन्ग सुना था शिव शंकर रखवाला मेरा, वो ना somehow मेरे रोज माइंड में चलता है चलता है चलता है। तो यूनिवर्स की पावर, उन्होंने ही जो है ना मुझे आपके यहाँ ज्वाइन कराया। उनको पता था मेरे साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो वो आप के जरिए, आप सब लोगों के जरिए जो है ना, वो मुझे स्ट्रेंथिंग मिलती गई मिलती गई मिलती गई। और आज जो ये ऋतु इतना जो है ना बोलती है, आई एम ग्लोबली ब्यूटीफुल इनसाइड एंड आउटसाइड, कॉन्फिडेंटली बोल दूं। जो लोग बोलते थे सुंदर नहीं है सुंदर नहीं है, भाई कोई बात नहीं ना, ये दैट इज योर व्यू। मैं सुंदर हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, और मैं दिन भर दिन सुंदर होती ही जा रही हूँ। जो मैम अफर्मेशन बोलती है ना, मैं वही रटती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ, यस आई एम ब्यूटीफुल आई एम ब्यूटीफुल। मैं कैंडल्स फ्लो करती हूँ, सब वो मेल्ट हो रही है। ऋतु, तो मेरी मदर भी है आपके ब्लेसिंग्स देने के लिए आज। या या कल थैंक मेरे यू सो भैया मच। महाकाल से वापस आए हैं। हाँ जी, मैं एक बार ब्लो करती हूँ क्योंकि वो करो करो, हाँ कैंडल नहीं ब्लो जा कर रहे लो हैं। तो। Happy birthday to you. Happy Happy birthday birthday, to dear you. Ritu. Happy Happy birthday, birthday, dear dear Ritu. Ritu. Happy Happy birthday birthday to to you. you. Happy birthday, Ritu. Happy birthday Happy God, birthday, thank you so birthday, much। Ritu। Happy हनी का बज birthday, रहा है वाला केक। happy birthday, Ritu. Happy birthday, Ritu. और थैंक यू सो ऑब्वियसली मच। सबकी तरफ से Happy मैं बोल रही हूँ, birthday. सब Happy आपको birthday. बहुत लॉन्ग हेल्दी लाइफ विश कर रहे हैं। और बहुत सब लोग इंस्पायर्ड है कि जैसे कभी किसी को डेंगू मलेरिया हो जाता है तो हम कितने लो हो जाते हैं, है ना। और मतलब सच अ फाइटर यू आर, और सबकी तरफ से सब आपको लॉन्ग हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ विश कर रहे हैं। सब चाहते हैं कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ। और आपकी कीमो जो मैं बोलती हूँ ना, वो अमृत है, आपकी बॉडी के अंदर अमृत जारी है। सो अमृत जाके क्या होता है, वही असर है। अमृत जाके कभी आप बीमार थोड़ी पड़ते हो। जब अमृत बॉडी में पड़ता है तो आप में और एक्टिव, आपकी और अच्छी जिंदगी हो जाती है, आप अमर हो जाते हो, आप अच्छे दिखने लग जाते हो, आप में चुस्ती आ जाती है, वाइटैलिटी होती है, इम्यूनिटी होती है। तो हर बार इस तरह से लाइक दिस इज हाउ यू बीन टेकिंग। एंड ट्रूली आई मस्ट से दैट मैंने कभी लाइफ में किसी को, एंड व्हाट मोस्ट ऑफ यू ऑल डोंट नो, कि जब इसकी आई थिंक पहली ही कीमो हुई थी तो उसके बाद इसके बाल गिरने लग गए थे, और इसके तो बहुत लंबे सुंदर से बाल थे, है ना। सो जो अभी और भी सुंदर होंगे अभी जो आएंगे वो तो मतलब कमाल के। ठीक है, तो अब बालों से तो सबको प्यार होता है, और गर्ल्स का तो ये होता है कि उनका मूड इज डिपेंडेंट अपॉन द हेयर। वी से दैट टुडे आई वोंट पार्टी बिकॉज आई हैव अ बैड हेयर डे, एंड वी इमीडिएटली शैम्पू और वी डू समथिंग अबाउट आवर हेयर। लिपस्टिक चाहे लगाए ना लगाए, बट हेयर रियली मैटर्स टू ऑल द गर्ल्स। सो इसको अब पता लग गया था कि इसको अपना बाल मतलब उतरवाने पड़ेंगे, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं था। क्योंकि डॉक्टर ने कितनी 10 या 12 कितनी बोली थी, 10 कीमो, टोटल 8 बोली थी। तो टोटल 8 कीमो बोली थी, तो वो पहली हुई थी तो उसमें इसके बाल ऐसे उतर रहे थे ना, उतरने शुरू हो गए थे। तो अब इसको पता था कि अब मुझे हटाने पड़ेंगे अपने बाल सारे, वो लॉन्ग ट्रेसेस। सो शी डांस्ड ऑल नाइट, शाम से लेके सुबह 3 बजे तक, क्योंकि वो एनर्जी अपनी डाउन नहीं करना चाहती थी। क्योंकि किसी भी लड़की के लिए एक बहुत ब्रेव चीज होती है कि वो अपने बाल को पूरी तरह शेव कर ले, और ऑप्शन नहीं था उस टाइम।
है ना। सो ये इसने 3 बजे तक डांस किया अपनी एनर्जी को हाई रखने के लिए। So this is how she has been fighting, and it is commendable, and I think you deserve a standing ovation from all of us to have this attitude and to be such a brave girl and a fighter. And मतलब वो दिल से वो दुआ निकल रही है कि इतनी सुंदर आपकी जिंदगी, इतनी हेल्दी हो कि एक एक सेल आपका पार्टी हैट लगा के डांस करे और बोले वाह मजा आ गया इसकी बॉडी में रह के। और मैम 3 o'clock सो के मैं 5:30 उठ भी गई थी, और मैंने 6 o'clock सेशन भी ज्वाइन किया था सेशन में अटेंड किया कि था। मुझे सेशन तो ज्वाइन करना ही है। यही तो मेरी ताकत है जो मुझे एकदम रोज जो है वो चार्ज करते हैं। आज भी मैं ऑल्दो मतलब रात को बहुत लेट ही सोई थी, तो सबके वो मैसेजेस देख रही थी, पढ़ रही थी, तो बहुत एंजॉय किया मैंने। मैं आज भी बहुत ज्यादा लेट सोई थी, 3 o'clock की सोई थी, और 4 o'clock का मेरा अलार्म होता है, और मैं 5:58 पे उठी थी। और ये जो ज्यादा ग्लो हो रहा है, ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि देखो, जब आप एक ना ग्लोइंग पर्सन के, गॉर्जियस पर्सन के दिए हुए गिफ्ट्स को जब आप यूज करते हो ना, तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निखार आ जाता है आपके चेहरे पर। तो ये निखार यहाँ से स्टार्ट हुआ है और फिर थ्रू द बॉडी जा रहा है, तो इसलिए मैं आज ज्यादा शाइन कर रही हूँ। पर्ल बन गए हो आप खुद। इसी छत्र छाया में हम लोग को भी वही ब्लेसिंग्स मिल रहे। वी आर ऑल्सो ब्लेस्ड दीप्ति मैम, सीरियसली Yes. सीरियसली। रितु को देख के ग्लो तो हम सबके चेहरे पे आना Exactly, पड़ेगा। रौनक का exactly. लिखा हुआ है। रितु तुम ने तो अपनी एक पूरी मिसाल ड्रेस है। देखो गाइस, यू हैव टू सी दिस ड्रेस दैट आई हैव गॉट फॉर हर। तो आप थोड़ा ऐसे करो, बहुत ही प्रिटी सी ड्रेस है ये। प्रिटी। सो इट्स अ शॉर्ट ड्रेस, मतलब अबव द नी, पता नहीं इसको बिलो द नी जा रही होगी, अबव द नी बड़ा ड्रेस सा है। इट्स दूर स्ट्रेट जाओ। ट्यूब व्हाइट कलर ड्रेस। हाँ, हाँ, नाउ वी कैन very nice. सी। बहुत Awesome. Now, Ritu, you can Wow. dance. She's looking like a doll. Yeah, actually. वाओ। या मैम ने जब मुझे ड्रेस सेंड की थी, तो मैम ने मुझे यही बोला था कि तुम इसको पहन के बिल्कुल बार्बी डॉल लगोगी। आप लग भी यही रही हो सोच बार्बी रही डॉल। थी। यही और सोच Prettier आप than सबने Barbie. जो मुझे इतना सारा प्यार दिया, इतने सारे एफर्ट्स किए मेरे बर्थडे को बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेशल बनाने के लिए। तो एक्चुअली मैंने ना पहले से एक पोएम लिखी हुई थी। मैंने 3 अक्टूबर को एक पोएम लिखी थी। मुझे पता था कि मुझे बहुत सारा लाड प्यार मिलने वाला है, तो ग्रेटिट्यूड पोएम मेरी पहले से रेडी थी। लेकिन वो मुझे प्यार मिला ना, वो इतना सारा मिला कि मुझे एक नई पोएम लिखनी पड़ी उस ग्रेटिट्यूड को देने के लिए। एंड पूनम मनन जो कि मेरी कजिन भाभी हैं, मेरी रात को बात हो रही थी, तो मैं उनको बोल रही थी ये सब बातें। तो शी सेड कि दीदी, आपने पहले ही जब ना यूनिवर्स को इतना सारा ग्रेटिट्यूड लिख दिया था ना अपनी पोएट्री के थ्रू, तो इसलिए यूनिवर्स ने आपको और सारा दिया कि ये ले भाई, तू और ले, तू और ज्यादा ग्रेटिट्यूड कर सबका। छप्पड़ फाड़ के। चप्पड़ फाड़ के, एग्जैक्टली। तो विद ऑल ऑफ योर परमिशन, कैन आई? Yeah. Yes. रितु Okay, is start. right. Being your वर्चुअल namesake, केक Ritu, I खाते also कैसे हैं feel पहले blessed. बताओ। हाँ क्या जी, हाँ कोई जी। टेक्निक किसी को पता है जिसमें वर्चुअल केक आप खा सकते हो? मेरा मन कर रहा है केक खाने का। मैम मेरा भी एक्चुअली है virtual बहुत मेरा भी। ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है। और मेरे को ना हाँ। ऐसे ही हमेशा मन होता था कि मैं केक पे बहुत सारी कैंडल्स लगाऊं, तो एटलीस्ट सब लोग होते हैं ना, तो फिर कहते क्या तो छोटी बच्ची थोड़ी जो पूरे केक सबकी को तरफ से एक कैंडल्स लगाओ। लगाऊं। मैंने तो ये इतने लोगों के बिहाफ पे ही भेजा है ना, ये तो मेरी तरफ से थोड़ी है। दिस इज फ्रॉम सुपर एक्सेलरेटेड 124 ग्रुप। अभी 124 पर्सन अवेलेबल है। 124 बार यहाँ यहाँ नहीं यहाँ नहीं, सब। 148 थे सबकी तरफ से जिन्होंने हाँ, ज्वाइन किया। वो तो किसी किसी का स्कूल होता है, ऑफिस भागना होता है, इसलिए दे मस्ट हैव लॉग डाउन। हाँ जी, बोलिए आप फटाफट, फिर हम लॉग आउट करें। Gratitude from me, Ritu Khanna, to all of you for making my birthday so special. सबसे पहले शुक्राना परम पिता परमात्मा को, जिन्होंने मुझे धरती पर भेज दिया। दूसरा शुक्राना मेरे मम्मी डैडी को, जिन्होंने मुझे जन्म दिया। तीसरा शुक्राना मेरी फ्रेंड सोनाली को, जिसने मुझे दीप्ति मैम से मिलवाया। चौथा शुक्राना दीप्ति मैम को, जिन्होंने मेरा जीवन इतनी सुंदरता से बदल दिया। उनके बाद शुक्राना हर एक शख्स को इस ग्रुप के, क्योंकि हर एक का नाम लेकर शुक्राना करूं मुश्किल हो गया है अब ये। हर एक स्वर से लेकर व्यंजन तक जितने भी लोगों के नाम हैं,
हर एक शख्स को आज मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। कभी कभी सोचती थी, पढ़े कविता कोई मेरे लिए भी। इस ग्रुप में आकर तसल्ली से हो रही है पूरी यह इच्छा भी। सोचती थी कि कोई नगमा मेरे लिए भी गुनगुनाए। यहाँ पर आज सभी ने मेरे लिए सुर सजाए। नाचे कोई मेरे लिए भी। यूनिवर्स ने कहा, ये ले, तेरी ये इच्छा भी आज मुकम्मल हुई। मैं हमेशा करती थी कोशिश भरपूर, सभी का जन्मदिन बन जाए खास, लेकिन आज ग्रुप की आम मेंबर को सभी ने बना दिया खास। इतनी खुशियां तब मनाई गई होंगी जब मैं पैदा हुई थी। आज तो मैंने वो खुशियां भी देख ली तब जो नहीं देख पाई थी। सभी के मैसेजेस देख पढ़ सुन मैं रही थी और तस्वीर मेरी मम्मी की मुस्कुरा रही थी। ऐसा लगा उन्हें मुस्कुराते हुए देखकर वो भी जैसे बेहद खुश हो रही हो। मेरे साथ साथ मेरी मम्मी भी आप सभी को दुआएं दे रही हो। सभी की आंखों में, बोलों में, चेहरे पर मेरे लिए प्यार ही प्यार नजर आया। हाँ, ये सच है कि सभी का प्यार देखकर मुझे भी खुद पर और ज्यादा प्यार आया। सभी के थे इतने दिल को छू लेने वाले अंदाज, सभी के हाव भाव देखकर मुझको भी हो गया आज खुद पर नाज। एक एक जन ने जो मेरे लिए बांधा समा, एक एक जन ने जो मेरे लिए बांधा समा, उस हसीन समा में मेरा रोम रोम गया समा। एक एक व्यक्ति ने मेरे अंतर मन तक को है जीता। हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग लिख सकती हूँ शुक्राने की कविता। जानती थी कि सभी मुझसे करते हैं प्यार, जानती थी कि सभी मुझे करते हैं प्यार बहुत, मगर नहीं जानती थी कि इस हद तक। सबसे पहले दीप्ति मैम के विषय से शुरुआत हुई। मैं तो यूं भी फूली नहीं समा रही थी और रात को दीप्ति मैम से फिर से बात हुई। सभी ने दिया मुझे खूब सारा लाड शिद्दत से। सभी के साथ साथ हो गई मुझे भी और भी ज्यादा मोहब्बत खुद से। मंदिर गई जब मैं अपने जन्मदिन पर, बैठी हुई थी वहां जमीन पर। करी माता रानी से बातें बहुत, किया माता रानी से शुक्राना भी बहुत। जब होने लगी मैं खड़े तो मेरी आंखों से खुशियों वाले आंसू छलक पड़े। मैंने सिर को जब झुकाया, माथे को धरती पर लगाया, तो उस सफेद जमीन पर अपने आंसुओं को चमचमाता हुआ पाया। मेरे उस खुशी में और भी आंसू निकल आए। बोली मैं माँ से, ये खुशियों वाले आंसू सदा ऐसे ही छलकते जाएं। मांगी माँ से आप सभी के लिए बहुत बहुत दुआएं। कहा माता रानी आप सभी के जीवन में सदा बसंत बहार ही रहे समाये। माँ की मूर्ति भी मुस्कुरा रही थी, वो भी भर भर कर ढेरों आशीर्वाद आप सभी को दिए जा रही थी। आप सभी ने मेरा जन्म दिवस पर बनाया, आप सभी ने मेरा जन्म दिवस बना दिया मूल्यवान। आप सभी के समय प्रेम समर्पण से हो गई मैं धनवान। जश्नों का यह सिलसिला सभी के जीवन में रहे चलता, सभी के सभी रिश्तों में बनी रहे मधुरता, सभी का रहे सुंदर स्वच्छ स्वस्थ तन और मन। मुझे रहेगा याद यह अनमोल दिन आजीवन। मेरी उम्मीदों से, मेरी आशाओं से कई गुना ज्यादा दीप्ति मैम और सभी ने कर दिया। मेरी उम्मीदों से, मेरी आशाओं से कई गुना ज्यादा दीप्ति मैम और आप सभी ने कर दिया मेरे लिए इतना सारा। मेरे लिए इतना सारा करने के लिए दीप्ति मैम और आप सभी का शुक्रिया 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 शुक्रिया। Ritu, I got goosebumps from your poem. Literally, मतलब बहुत ज्यादा blessing आपके लिए, बहुत ज्यादा। So beautiful, so beautiful. बहुत सुंदर। थैंक यू थैंक यू। तुम्हें शीबा और वर्षा का डांस याद है? यस बिल्कुल बिल्कुल तुम बिल्कुल। लोगों को नचा Excellent. भी It देते। was very beautiful. Being So a heart touching, namesake, very heart I touching. also want lot of blessings, Deepti, and the participants. Ritu. Oh well, every day I write a lot of blessings for everyone who listens to my voice in the morning or through the YouTube. So that Wow. goes like that's my standing prayer. So I write that 21 times for everyone who's listening, you know, either ways, either through the YouTube or through this the live session. Of course, We are live all session we blessed. get to absorb that energy also. Energy also changes in the live sessions.
But however, people who can't, who are living in Europe and UK, they will have to listen to YouTube only. But people in India, if they're listening to YouTube, try and work it out and be there at 6 o'clock. And thank you, Ritu, so much. You are incredible. And Incredible. you are a doll like Barbie inside out only. Yes, thank you so much. हमने आपके डांस में देखा कि आपको किसी ने विग गिफ्ट करी है. Yes, पहन मेरी के नींद दिखाना, विग पहन के दिखाओ. just a minute. क्या पानी भी पीना है? That is how Ritu used to look earlier because उसके बहुत लंबे बाल थे. मेरी बर्थडे पे उसने अपने ओरिजिनल बालों के साथ डांस किया था. If you remember, 13 dances जो किए थे. हमारा से आ जाएंगे इसके बाद। पता रहे ना. Oh. Ritu, can you hear me? आप मुझे सुन सकते हो? Yes, yes, वो ma'am. busy हैं. आप वो Oh. दिखाओगे मुझे? अरे So sweet. मतलब यहाँ पे ऐसे हो रहा था कि संडे से मेरे पास गिफ्ट आने स्टार्ट हो गए. मुझे स्माइली Beautiful doll. ये सबसे पहला गिफ्ट तो दीप्ति मैम ने मुझे सितंबर में सेंड कर दिया था, ये ड्रेस. एम्मा में दे दिया. और जब ये मेरे घर आई थी, मेरी पर्स लेकर आई थी हैदराबाद से ओरिजिनल, और ये लाइट पिंक है. और मैं तभी सोच रही थी मैं अपनी बर्थडे पे ना पिंक ड्रेस ही पहनूंगी. और बाय चांस मेरी फ्रेंड ने जो मुझे ड्रेस भेजी, जो मैंने अपने बर्थडे पे वेयर की थी, वो जो परफॉर्मेंस में भी है, वो पिंक ही थी. और संडे को सुनैना दी ने ये मेरे लिए भेजा. मेरे लिए बहुत यूनिक था, मेरे को बहुत पसंद आया ये. ब्लेसिंग एंड लव. और उसके बाद एक मेरा जो है सीक्रेट एडमायरर ने मेरे एक पर्स भेजा, जिनका मुझे नाम नहीं पता चल पाया. बहुत मुश्किल से नाम पता चला. एक बहुत खूबसूरत पर्स आया था, बाद में पता चल गया वो हमारी Secret लाइन admirer. म्यूट करना, आवाज नहीं आ रही एक्चुअली. वो मैं म्यूट कर देती हूँ, कोई बात नहीं. हाँ, अब आ वो जाएगी. हमारी प्रिया नेहरा दी थी. मैंने उनको पूछा वापस, शी सेड नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं भेजा तेरे लिए. और उसके बाद हमारी जो है छोटी छुटकी अनुराधा शाह, अनु, उसने मेरे लिए बहुत खूबसूरत एक पूरा सूट भेजा विद ज्वेलरी. तो मतलब, और इन सब के बियॉन्ड तो आप सबके जो ब्लेसिंग्स हैं, प्यार लाड है, वो Priceless. वो Blessings मेरे are लिए. priceless. और मैंने जो भेजा, मैंने सबकी तरफ से. It is from Super Accelerated Group. Yes, of It's course, not of course. my individual. Yeah, it's on behalf of everybody. मतलब मैं ना बिल्कुल You are आजकल so large-hearted, Dipti. और मेरा मन में ये था कि मेरी एक नई गेम स्टार्ट होनी थी मेरे अक्टूबर बर्थडे पे. मैंने सोचा था कि मैं जो ना हर एक घंटे में ना थैंक यू बोलूंगी इन माय ओन वे. लेकिन मैं सिर्फ 2 ही वो भेज सकी, क्योंकि एक दिन पहले मेरे फोन में, जैसे पूनम मोदी मैम के फोन में प्रॉब्लम आ गई थी ना उनके बर्थडे दिन, मेरे फोन में भी प्रॉब्लम आ गई थी. फोन चार्ज नहीं हो रहा था. तो मैंने फिर उनको थोड़ा सा प्रेयर करी, अपने जैक पॉइंट को, चार्जर को, मोबाइल को. अभी ठीक है, तो वो लेकिन चार्जिंग कम होती रहती है, तो इसलिए मेरे को वो जो करना था मैं नहीं कर पाई. तो मैं बस फटाफट से एक जो है ना सॉन्ग को वो थैंक यू मैं करूंगी. तो आप गेस कीजिएगा कि वो सॉन्ग कौन सा है. ठीक है. थैंक यू 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 थैंक यार यू तो होना ही था. थैंक यू 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 थैंक यू. हम तो ये यार गाएंगे, बार तो बार दिल में आए तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो, क्या मतलब जो भी सॉन्ग है. 50. चलो, वेरी वेरी गुड रितु. गॉड ब्लेस यू विद द बेस्ट ऑफ हेल्थ. सबकी दुआएं तुम्हारे साथ है, और दुआएं बहुत ज्यादा काम करती हैं. So I'll quickly tell you a little real life story. There's a doctor called Dr. Harshid Mehta. We all know, very popular cardiologist. ये वीडियो हमने देखा था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, जो यूट्यूब पे उन्होंने डाला हुआ है, अभी भी है. तो उन्होंने एक छोटा सा बच्चा, 6 साल की बिटिया, उनका ब्लड बॉडी में कम होने लग गया था.
तो उनको बट उसकी मम्मा जब भी, अब मम्मा को बहुत वो लगता था कि मेरा 6 साल का बच्चा, और फिर 4 साल उसकी तबीयत खराब होने लग गई थी बच्चे की, एंड शी हैड टू अंडरगो अ सर्जरी, कुछ ऑप्शन ही नहीं था। तो माँ हमेशा बोलती थी कि there's God who lives in your heart, so you don't have to worry about anything. God will make your heart absolutely okay because God lives in your heart. तो उस बचपन से उस बच्ची ने अपनी मम्मी से यही सुना था कि भगवान मेरे हार्ट में रहते हैं, क्योंकि हार्ट की प्रॉब्लम थी, उनका ब्लड कम होता जा रहा था, तो हार्ट पंप नहीं कर पा रहा था। तो एनी हाउ फाइनली ऐसी स्टेज आ गई कि जब उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ा और सर्जरी कंटेम्पलेट करनी पड़ी। ये रियल है। हाँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, किसी को वीडियो मिलता है तो प्लीज डाल देना, बिकॉज वी शुड ऑल लिसन टू दिस वीडियो, वॉच दिस वीडियो रादर। उसके बाद जब वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर मेहता ने कहा कि देखो सर्जरी तो करनी पड़ेगी, सर्जरी अगर हम करते हैं तो 30 चांस है जीने के, और सर्जरी नहीं करते हैं तो मैक्सिमम 3 महीने लाइफ है इसकी। तो फिर पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि नहीं चलो सर्जरी तो करा ही लेते हैं। और उसके बाद वो बिटिया वो जो उनकी बेटी थी वो डॉक्टर को बोलती है कि नहीं, मेरी मम्मा ने बोला है मेरा हार्ट बहुत स्ट्रांग है और गॉड मेरे हार्ट में रहते हैं और वो सब ठीक कर देते हैं। उसके बाद जब ऑपरेशन टेबल पे, द ऑपरेशन काइंड ऑफ फेल्ड। ओके, सो डॉक्टर मेहता बहुत ज्यादा दुखी हो गए। और डॉक्टर मेहता डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बहुत अच्छे दोस्त थे। तो वाइल एट डिनर उन्होंने ये एक्सपीरियंस नरेट किया था, जिसका वीडियो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने फिर बना के डाला, मतलब फेथ और उसकी इम्पोर्टेंस बता के। फिर वो ऑपरेशन तो वो नहीं था, तो डॉक्टर मेहता जाके सोफे पे बैठ गए एंड ही वाज फीलिंग वेरी बैड अबाउट इट। और उन्होंने ये कहा कि कि भगवान आप अपनी पावर को रियलाइज कराओ। ये बच्ची ने ये माना है ना कि भगवान इसके दिल में रहते हैं और वो कुछ भी ठीक कर देंगे, कितनी भी वैसी सिचुएशन हो। So you will not believe it's a real life story because ये सब नाम बहुत ज्यादा है, and I want you to watch that video because शायद मैं उस तरह से नरेट नहीं कर पाऊंगी जैसे उन्होंने बताया था। तो इमेजिन सडनली उनकी टीम मेंबर्स भाग के आए, जो उनकी जूनियर डॉक्टर्स थे, उन्होंने कहा कि ब्लड सडनली बनने लगा है एंड सिचुएशन नॉर्मल हो रही है, हार्ट बीट वापस आ गई है और सब कुछ ठीक हो गया है। so that was the kind of faith that जब बिल्कुल सारे जिंदगी के रास्ते दरवाजे सब बंद हो जाते हैं, so there is that door that opens and then छप्पर फाड़ के वापस मिल जाता है। So that happened, and it is not a make-believe story. It is about the real person, that this is how, when we have that faith ignited, that yes, जब thought में ये चीज होती है that I'm going to excel in my life, I'm going to get better and better, I'll be the healthiest, like whatever our goals and dreams, whatever is, जो belief के साथ strongly हम करते हैं, वो चाहे वो कितना भी impossible हो, so इतने इससे बड़ी impossible चीज नहीं हो सकती जो मैंने आपको experience बताया है। So any one of you जिनके पास आज टाइम है, प्लीज ये वीडियो ग्रुप पे डाल देना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का है एंड डॉक्टर हर्षद मेहता का, और जिन्होंने ये सर्जरी की थी, एंड एवरीथिंग बिकेम नॉर्मल, और वो बच्चा आज बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है। So yeah, this is what I wanted to share. Very nice. Thank you, ma'am. Thanks. Thank So, you, ma'am. all right, bye bye. Have a beautiful day. It just started on such a great note. Thank you so much. There are lots of hands raised. John sir, आपका message we've read, but then we'll be able to speak to you tomorrow only because today being a work day, all of us have to run. So thank you so much, and have a beautiful day full of love and laughter. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, and God bless you. Thank you. Million